Hmm. Insert statement we have completed. Now there are few more DML operations like delete, undelete and update. These three operations I will be covering. उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि merge जो है particularly कौन से ऑब्जेक्ट के लिए चलता है, बिकॉज merge is a kind of statement, एक ऐसा ऑपरेशन है जो सारे ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं बेसिकली. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिलीट स्टेटमेंट. ऑपरेशन वाइज यू नो एवरीथिंग कि डिलीट किस लिए यूज होता है, अनडिलीट किस लिए यूज होता है ना, और अपडेट किस लिए होता है. बस लेट मी टेक द प्रोग्राम्स, प्रोग्रामेटिकली फॉर्म में ले लेता हूँ एग्जांपल सो दैट वी कुड कंप्लीट दिस टॉपिक एज अर्ली एज पॉसिबल. एंड yesterday we have seen this about what is the advantages of using database class method. So in the yesterday's program, that see, instead of actually using insert statement, we have used database.insert. That is what the yesterday's program was like. So whenever you use database class method, any of the method, database class method, then you have a possibility that you could allow the partial processing. But then again, there are two flavors for this. Database.insert, for example, if the second parameter you make it true, then it won't make any difference. It will be plain as good as a plain insert statement. But if you kept the second parameter as to be the false, then only you could achieve the partial processing mechanism. So guys, this is something you shouldn't be forget. This is something you shouldn't forget, because this is one thing which is actually why we are learning database class method, because we wanted to allow the partial processing. And to allow the partial processing, making the second parameter in this particular database.insert method, making the second parameter as to false is an essentiality. If you forgot this, then there is no meaning to learn this whole concept, right? So please don't forget this. Please don't forget this. Okay. So let me now start with the delete statement. So I'm taking the programs directly. Yours is 201. So let me go with this 201 batch. Okay, and let's go to the developer console. And we have created a class DML utility, I think. Let me check it out. We already have created a class with the name DML utility. So all of the DML operation related, the procedures I will be creating over here. So we completed with these two programs. Let me go with this another use case. So we have an use case where we wanted to delete few of the records from hiring manager. Precisely, we will be asking the user, we will be asking the user to enter the strings. And based on that string, we will be deleting the records from the database. That is what we are planning to do. So I'm making this as a use case, and starting with the specific characters. Okay. So for this, I'll be creating a class. I'll creating a method with the name public static then void, and let, for example, delete, because we wanted to delete hiring manager. Okay, so I'll giving the name as to delete HR records or hiring manager records, whatever, HR records. Okay, so with this name I'll be creating one method over here. Now one thing, we wanted the user to enter some of the strings है ना, हम user को बोलें कि आप कुछ starting के characters enter करो. That's why we are expecting कि this method is going to receive a string character. So within this method I'll be creating one of the parameter. एक parameter create करता हूँ इसके अंदर string कोई भी एक नाम से, for example starting chars. ठीक है, तो whatever the user is going to be get entered है ना, we are collecting it inside this particular string variable, and based on this string variable हम आगे का लॉजिक डिजाइन करते हैं. तो एक एज अ बेस्ट प्रैक्टिस देखो, मैं दो तीन चीजें जो है हम आउट ऑफ द बॉक्स फीचर पढ़ते हैं हमेशा. आई टोल्ड यू कि देखो, व्हेनेवर दिस इज द यूज केस, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग समथिंग लाइक दिस, तो यू शुड अप्लाई दिस प्रोसेस. तो यहाँ पर एक प्रोसेस है, यूजुअली मैं आपको बोलता रहता हूँ बार बार कि व्हेनेवर यू आर आस्किंग समथिंग, the user should enter a value. We should this whenever this method is called, it should be called with one parameter. Now we need to check whether the user has entered this thing or not, क्योंकि इसके आगे अब मैं जो कुछ भी यहाँ लिखने वाला हूँ, whatever the business logic what I will be writing over here, that business logic completely depends on the string characters, of the value of the string character. And so before I even could start writing anything, I should check for this as a best practice. As a best practice of the Apex, you should always check whether this string character is not null and it's not equals to empty. It must have some values. So the string chars should not equals to what? Should not equals to null, and the string chars should not equals to
not equals to empty. So this is what we need to check. So if it is not equals to null and if it is not equals to empty, that means it must have some value. So if it is having some value, then we will be collecting it. We will be firing a query और जो उसने enter किया है उसके हिसाब से मैं वो particular hiring manager का record obtain करता हूँ. So I'll be collecting this inside a list of hiring managers. ठीक है. Let me go with the name of the object. ऑब्जेक्ट का नाम API नेम क्या है, कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे. So it's hiring underscore manager underscore C. So I'll be creating one of the collection with the name lsthrs equals to. Now here I will be writing the query. ठीक है, यहाँ पर मैं query लिखता हूँ. So query is like select ID. ठीक है, and then the second is name and बस इतना काफी है. We wanted to select it from where? From the hiring managers. I wanted to select this whole entities from the hiring manager, but not every entity. Where the name, name should be like this. Name ये वाला जो यहाँ पर enter किया उसने. So where name, I'm making the use of like operator over where name like, and the dynamic assignment. So whenever we wanted to use the dynamic assignment, we have this colon where name should like equals to जो starting characters user ने enter किए वो, and then plus what? Plus percentage होता है आपका any possible values है ना, any possible characters. तो अगर यूजर ने यहाँ पे m एंटर किया है तो स्टार्टिंग विद द m, उसके बाद में फिर चाहे कुछ भी रहे वो चलता है. तो जैसे मर्क इनकॉर्पोरेशन या फिर कुछ और, जैसे अगर यूजर ने एंटर किया है g, तो g स्टार्टिंग कैरेक्टर शुड बी g, लेकिन g के बाद में फिर प्लस इट कुड हैव एनीथिंग. तो जैसे कि जीनी पॉइंट, ठीक है, वट एवर द रिकॉर्ड दैट स्टार्टिंग विद द जी. या फिर मान के चलो कि हायरिंग मैनेजर नेम है तो फॉर एग्जांपल पी एंटर किया है तो पी के बाद में कुछ भी जैसे पवन कुमार, प्रकाश, है ना, समथिंग लाइक दिस. तो दिस इज व्हाट आई विल बी फेचिंग. तो ये मैं क्वेरी से रिटर्न कर रहा हूं. तो देयर आर चांसेस दैट क्वेरी इज गोइंग टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज एंड दैट्स व्हाई वी आर कलेक्टिंग इट इनसाइड द लिस्ट कलेक्शन. ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे LSTHRs में वो सारे हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड मिल जाएंगे जिनका नेम जो है स्टार्टिंग कैरेक्टर ये रहा और बाद में कुछ भी रहा. तो सिमिलर टू दैट वी आर गोइंग टू गेट द नेम. Now what we wanted to, we simply wanted to delete this. तो उसके लिए मैं plain delete statement भी ले सकता हूँ, delete HRs. ठीक है, delete HRs ये भी चलेगा. और इसके बाद में मैं database class method जो है, ठीक है, database जो class method है वो उससे भी आपको सिखा देता हूँ. ठीक है, ये भी आपको दिखा देता हूँ. चलो, so this is the second way और this is the first way. second way इसके बाद बताता हूँ. तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले एक example system.debug so that we could understand कि कितना डेटा कलेक्ट हुआ ना. the size of collection equals to plus lsthrs dot size. ठीक है, बस ऐसे ये देखने के लिए कि कितना डेटा कलेक्ट हुआ और कुछ नहीं. उसके बाद में फिर उसको डिलीट कर देंगे. ठीक है, उसके बाद में हम डिलीट कर देंगे. so let's go to the hiring manager object and we have 762 records. ठीक है, मैं ये बल्क जो है ये वाला रिकॉर्ड जो है ये लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो विद बी तो आई हैव 100 रिकॉर्ड्स बल्क HR ऐसा कुछ. तो भी तो ये जो कीवर्ड है ना BUL के बल्क, ये मैं यहाँ पे लेता हूँ. चलिए, सो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ. लेट मी कॉपी दिस and we have DML utility HR. ठीक है, with the name delete HR records. delete HR records. ठीक है, so this is the method I am calling and this method certainly requires me to enter the starting characters. तो यहाँ पे starting character string है, single inverted comma में दे रहा हूँ मैं bulk. ठीक है, bulk and let's see what happen when we execute this. तो एक सिस्टम डॉट डीबग लगा रखी है मैंने यहाँ पे ये जानने के लिए कि कलेक्शन का साइज कितना है. तो उसको 100 रिकॉर्ड्स मिल गए और 100 रिकॉर्ड्स को उसने डिलीट भी कर दिया. इट्स डिलीटेड ऑल, उसने डिलीट भी कर दिया है. नाउ इफ आई गो ओवर हियर, अभी मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है,
अभी मैं जहाँ पे तो 20 से मुझे 100 रिकॉर्ड दिख रहे थे, ये सारे रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। लेट्स सी, देयर इज नो सच डेटा ओवर हियर। ठीक है, देयर इज नो सच डेटा, वो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, एक ये तरीका है। नाउ यू हैव 662 रिकॉर्ड्स, पहले 700 समथिंग थे। सो एक तो ये तरीका है आपका एक नॉर्मल प्लेन डीएमएल डिलीट स्टेटमेंट देने का। दूसरा है अपना जो कल हमने सीखे कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द प्लेन डीएमएल स्टेटमेंट, है ना, व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज डेटाबेस क्लास मेथड्स आल्सो। तो डेटाबेस जो हमारी क्लास है, डेटाबेस क्लास जो है, इसमें भी तो एक डिलीट मेथड होती है। ठीक है, इसमें भी एक डिलीट मेथड होती है हमारी, ये वाली। ठीक है, जिसमें एक तरफ दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है हमको, पहला पैरामीटर तो हमें वो कलेक्शन देना है जिसको हमने डिलीट करना है। ठीक है, वो हमारा तैयार है। दूसरा होता है ट्रू और फॉल्स, और आपको ये पता है अगर आप ट्रू देते हो तो ट्रांजेक्शन मेंटेन होते हैं, पार्शियल प्रोसेसिंग नहीं मिलती है। लेकिन अगर सेकंड पैरामीटर आप फॉल्स देते हैं तब जाके आपको पार्शियल प्रोसेसिंग मिलती है। और इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट, लेकिन सिंपल नहीं, लिस्ट ऑफ डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट। आई विल बी सिलेक्टिंग दिस। ठीक है, आई विल बी सिलेक्टिंग दिस। तो पहले मैं इसको पूरा फॉर्मेटाइज कर देता हूँ सब जगह से। मतलब हियर आई वांटेड टू गिव डेटा लिस्ट ऑफ डेटाबेस डॉट डेटाबेस डॉट डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट। ठीक है, डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट, लेकिन सिंपल नहीं, वी वांटेड लिस्ट ऑफ डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट। तो मैं इसको लिस्ट कलेक्शन के अंदर ले लेता हूं। लिस्ट ऑफ database dot save result, and you could give any name over. I will be preferring this name, result equals to this। ठीक है, एंड नेम। अब चलिए, अब कौन सा लिस्ट कलेक्शन है आपका, कौन सा लिस्ट कलेक्शन है। यहाँ पे सबसे पहला जो पैरामीटर है वो लिस्ट कलेक्शन रहना चाहिए। तो वी वांटेड टू डिलीट दिस LSTHR, हमने यहाँ पे कलेक्शन जो है जमा करके रखा है, तो हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। एंड सेकेंड थिंग, what you want, you wanted to allow partial processing or not, we wanted to allow, so to allow we need to make the second parameter as to be the false। ठीक है, we need to make the second parameter as to be what, false। ठीक है, चलो, let me save this code, let me save this code। We have some error, what is that, illegal assignment list to list, illegal assignment list to list, database dot not save result, it is delete result। save insert के लिए होता है, database dot delete result, delete result ये लिखना था, राइट। सेव जो होता है वो इंसर्ट के लिए होता है, डेटाबेस जब आप डिलीट करते हो तो मेथड का नाम डिलीट रिजल्ट है। ये देखो, ये एरर था, अपडेट के वक्त अपडेट रिजल्ट आता है। लेट मी सेव दिस कोड और फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वंस अगेन लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। इस बार जो कैरेक्टर्स हम देते हैं, डीएमएल देता हूं मैं, तो मैं एक बार देखो 662 रिकॉर्ड से एक बार मैं डीएमएल पे जाता हूं, एंड डी के नाम से वी हैव 200 रिकॉर्ड्स। ठीक है, 200 रिकॉर्ड डीएमएल के नाम से। सो हियर आई एम मेकिंग सर्टन चेंजेस एंड लेट मी गिव द स्टार्टिंग नेम एज टू बी डीएमएल। बाद में चाहे कुछ भी रहे, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो डीएमएल, तो डीएमएल के बाद में चाहे कुछ भी रहे, एचआर रिकॉर्ड 1 2 3 4 वट एवर। ठीक है, सो आई विल बी एग्जीक्यूटिंग दिस, आई विल बी एग्जीक्यूटिंग दिस। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ मेनी रिजल्ट वी हैव। 200 रिकॉर्ड्स हमको मिले हैं जो सारे डिलीट हो चुके हैं, राइट। सो नाउ इफ आई गो ओवर हियर, यहाँ पे 200 रिकॉर्ड थे जिसका स्टार्टिंग था डीएमएल। नाउ लेट मी ट्राई टू रिफ्रेश एंड सी, ऑल हैव बीन गॉन, ऑल हैव बीन गॉन। तो ये एक और तरीका है, मतलब यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांटेड टू गिव। यू वांटेड टू यूज द प्लेन डीएमएल स्टेटमेंट डिलीट, है ना, दिस इज द फर्स्ट वे। द सेकेंड वे इज लाइक यू कैन इवन यूज डेटाबेस डॉट डिलीट जो आपकी क्लास है, अगर आपको पार्शियल प्रोसेसिंग चाहिए तो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। ठीक है, चलो, नाउ देयर इज वन मोर वे, देयर इज वन मोर वे, एक और तरीका है वो भी सिखाता हूं। एक और ऑप्टिमाइजेशन है, बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है। ये सारा कोड को मैं ये कर देता हूँ, लेट मी मेक एवरी कोड ओवर हियर। ये पूरा कोड जो है हमारा, ठीक है, ये पूरा कोड को मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, आई विल शो यू वन मोर थिंग, और एक तरीका बताता हूँ, सबसे ऑप्टिमाइज तरीका। ठीक है, सबसे ऑप्टिमाइज तरीका। सी, दिस इज माय क्वेरी, दिस इज माय क्वेरी। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस क्वेरी, दिस इज माय क्वेरी,
दिस इज माय क्वेरी, लेट मी कॉपी दिस क्वेरी, पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है, पेस्ट इट ओवर हियर, ओके। What we want, we certainly want to uh, we wanted to delete all those hiring manager records whose starting character is being entered from the user, ठीक है, this is what, तो this query will return me list of collection whatever है ना। let me show you something, डायरेक्ट डिलीट के साथ डायरेक्ट भी दे सकते हो, डिलीट के साथ आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, दिस इज ऑल्सो अलाउड, दिस इज ऑल्सो अलाउड। तो ये इतना मतलब जैसे पहले कलेक्शन में लेना फिर कलेक्शन को डिलीट करना, या तो प्लेन डिलीट से या कलेक्शन को डिलीट करना डेटाबेस डॉट डिलीट से, ये भी चलता है, ये भी चलता है। बट एक और तरीका ऑप्टिमाइज, सबसे ऑप्टिमाइज तरीका ये बता रहा हूँ, डायरेक्ट डिलीट के अंदर ना पूरी क्वेरी लिख डालो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू डू दिस। क्वेरी जो है ना वो पूरी डिलीट स्टेटमेंट के अंदर ही लिख दो, एक ही लाइन में काम ही खत्म हो जाता पूरा। चलो ये भी देखते हैं, ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो एक और क्या क्या है हमारे पास हायरिंग मैनेजर्स में, बल्क में जब हमने रिकॉर्ड स्टोर किया था, हायरिंग मैनेजर, ठीक है, हायरिंग मैनेजर, तो मैं एच की लिस्ट पे जाता हूँ, वी हैव 99 रिकॉर्ड्स, तो हायरिंग ये वर्ड मैं यहाँ पे देता हूँ और इस वर्ड से मैं रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ। देखो इस बार मैंने क्वेरी पूरी ऑप्टिमाइज कर दी, एक ही लाइन में पूरा ही कर दिया इसको, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन एंड एग्जीक्यूट दिस। हो गया एग्जीक्यूशन, तो हो गया, इनफैक्ट आपका लॉग भी प्रिपेयर हो गया है। तो अभी आप सिस्टम डॉट डीबग तो नहीं दिया, तो कुछ यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा आपको ऑब्वियसली, तो उसको यहाँ पर हम सेल्सफोर्स से वेरीफाई करते हैं। सो लेट मी रिफ्रेश दिस, देखिए ये पूरा डेटा डिलीट हो गया। तो ये काफी सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे आप रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो, ठीक है, काफी सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे आप रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो। कन्वेंशनल तरीका तो ये है कि आप पहले क्वेरी फायर करिए, क्वेरी का रिजल्ट जो है वो लिस्ट कलेक्शन में कलेक्ट करो, और वो जो कलेक्शन जो आपने दिया उसको आप डिलीट कर दो। वो आप डिलीट करने के लिए फिर दो पॉसिबिलिटीज है, या तो प्लेन डिलीट स्टेटमेंट दो या डेटाबेस डॉट डिलीट दो। अगर आपको पार्शियल प्रोसेसिंग चाहिए तो ये दीजिए, अगर आपको ट्रांजेक्शन मेंटेन करना है तो ये दीजिए, ठीक है। ये डायरेक्टली दी जा सकती है, लेकिन जब भी आप डेटाबेस डॉट डिलीट देते हैं तो आपको रिजल्ट कलेक्ट करना पड़ता है। इंसर्ट का रिजल्ट होता है सेव रिजल्ट क्लास में, डिलीट का होता है डिलीट रिजल्ट मेथड में, और अपडेट अब इसके बाद जो इसका अपडेट रिजल्ट नाम की मेथड होती है। डेटाबेस में अलग अलग मेथड्स अलग अलग को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप यहाँ डेटाबेस डॉट इंसर्ट लिखोगे तो आपको डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट करना पड़ेगा, डेटाबेस डॉट डिलीट लिखोगे तो डिलीट रिजल्ट में कलेक्ट करना पड़ेगा, अपडेट करोगे तो अपडेट रिजल्ट में कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, इस तरह से। और सबसे जो कहना चाहिए सबसे ऑप्टिमाइज तरीका है वो डिलीट के अंदर ही पूरी पूरी क्वेरी फायर कर दो, बस ये भी चलता है, ये सबसे ऑप्टिमाइज तरीका है, ठीक है। चलो, तो ये था आपका डिलीट स्टेटमेंट। अब मैं आपको अनडिलीट स्टेटमेंट बताता हूँ, ठीक है। अगर हमने कुछ डिलीट किया है तो उसको रीस्टोर कैसे करेंगे, इफ यू हैव डिलीटेड समथिंग तो उसको रीस्टोर कैसे करेंगे, उसके लिए राइट अ प्रोग्राम टू रीस्टोर ऑब्लिक अनडिलीट द रिकॉर्ड्स, ठीक है। वी वांटेड टू रीस्टोर द रिकॉर्ड, जो हमने डिलीट किया हुआ है उसको हम रीस्टोर कैसे करेंगे। तो सो ऑल दीज रिकॉर्ड्स आर देयर इनटू द रिसाइकल बिन। हम रिसाइकल बिन में जाके देखें तो ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं आपके, हायरिंग मैनेजर एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट ओवर हियर, डीएमएल है ना, ये सारी चीजें हैं। सो आई कुड रिस्टोर एनी वन ऑफ देम, किसी एक को रिस्टोर करता हूँ, एक किसी एक टाइप को। सो पब्लिक static and then void, public static and void. Now give any name to this, give the, try to give the significant name. So restore, STORE, restore, HRECORD, ठीक है। With this name I am creating a method and we are actually here we are asking the user कि आप जो है आप स्टार्टिंग कैरेक्टर्स जो है वो हमको दीजिए। आई कुड कॉपी द सेम थिंग बिकॉज मेथड तो सारी अलग अलग कॉलोनी है। तो वो पर्टिकुलर नेम जो आप यहाँ सप्लाई कर रहे हो उसके नेम से अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट हुआ है तो वी कैन रिस्टोर दैट, ठीक है। तो एज एन बेस्ट प्रैक्टिस यू नो दिस, जब भी हम ऐसा कुछ मांगते हैं तो वी नीड टू चेक फॉर दिस कि हाँ दिस इज समथिंग विच इज प्रेजेंट और नॉट, कहीं इसकी वैल्यू नल तो नहीं है, बिकॉज इसके आगे का जो हमारा पूरा लॉजिक है वो सब कुछ डिपेंड करता है इस चीज पे कि जो यूजर एंटर कर रहा है दैट शुड नॉट इक्वल्स टू नल एंड दैट शुड नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है।
तो ये चेक करिए सबसे पहले एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, उसके बाद ही प्रोग्राम पे आगे बढ़ो आप हमेशा। तो हियर आई वांटेड टू रिस्टोर, है ना, हियर आई वांटेड टू रिस्टोर ऑल दोज रिकॉर्ड्स, हियर आई वांटेड टू रिस्टोर ऑल दोज रिकॉर्ड्स व्हिच हैज बीन डिलीटेड बाय द यूजर। तो इसके लिए फिर मैं अनडिलीट स्टेटमेंट यूज करने वाला हूँ, और अनडिलीट के भी दो फ्लेवर्स होते हैं अलग अलग। तो जो पहले एक क्वेरी बनाता हूँ, तो सिंपल क्वेरी लिस्ट ऑफ, आप डायरेक्टली क्वेरी को यहाँ पे अनडिलीट के साथ में भी दे सकते हो जैसे इसके पहले सिखाया मैंने, बट आई एम गोइंग टू कीप इट सिंपल। सो लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर्स, लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर्स, लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर्स LSTHR इक्वल्स टू, ठीक है, लिस्ट ऑफ हायरिंग मैनेजर्स एंड गिव एनी नेम लाइक LSTHR इक्वल्स टू, या फिर टू रिस्टोर, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट किया और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं क्वेरी देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेरी देता हूँ सिलेक्ट, क्या चाहिए मुझे, आईडी चाहिए, एंड आई वांटेड लाइक नेम भी दे दो, ठीक है, इज डिलीटेड, इज डिलीटेड की वैल्यू, ठीक है, इज डिलीटेड की वैल्यू भी दो, एंड फ्रॉम आई वांटेड टू फेच दिस होल एंटिटीज फ्रॉम हायरिंग मैनेजर, ठीक है, मुझे हायरिंग मैनेजर से ये सारी चीजें लाके दो। और यहाँ पे हमको ऑल रोज भी यूज करना पड़ेगा, ऑल रोज क्लॉज जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो डिलीटेड रिकॉर्ड को भी कैप्चर करता है। सो यहाँ पे सिलेक्ट आईडी नेम इज डिलीटेड फ्रॉम द हायरिंग मैनेजर, ये सारा डेटा दीजिए, लेकिन सब कुछ नहीं चाहिए, रादर आई वांटेड टू गेट ओनली दोस थिंग फ्रॉम हायरिंग मैनेजर, सॉरी वेयर, वेयर, वेयर फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांटेड इज लाइक, ये जो इज डिलीटेड है हमारा, इज डिलीटेड की जो वैल्यू है वो ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब हमें सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, एक्चुअली हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए जो कि डिलीट हो चुके हैं, ठीक है, जो कि डिलीट हो चुके हैं, इसलिए इज डिलीटेड की वैल्यू मुझे ट्रू चाहिए। और एक और चीज, अगर मान के चले कि 100 रिकॉर्ड डिलीट हुए, तो सारे 100 नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली हमें वो सारे 100 में से वही रिकॉर्ड चाहिए जो एक, जो तो एक तो ये कि जो कि डिलीट हो चुके हैं, इज डिलीटेड की वैल्यू ट्रू है, और जो स्टार्टिंग कैरेक्टर ये वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन में पुट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एंड लिखा। तो एक तो ये है कि इस रिलेटेड की वैल्यू ट्रू होना चाहिए, माने वो डिलीटेड होना चाहिए, और दूसरा ये है कि जो नेम है उसका, एंड द नेम, ठीक है, लाइक ऑपरेटर, नेम लाइक कूलन, नेम लाइक कूलन व्हाट, अगेन द सेम कंडीशन, स्टार्टिंग कैरेक्टर्स, स्टार्टिंग कैरेक्टर जो यूजर एंटर करने वाला है यहाँ पे, ठीक है, वो, देन प्लस, प्लस व्हाट, वही आपका परसेंटेज ऑपरेटर, कि नेम स्टार्टिंग में जैसे DML है, तो अब DML के बाद कुछ भी रहे वो चलता है, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आप डिलीटेड रिकॉर्ड फेच करते हो, जब भी आप वेन एवर यू फेच डिलीटेड रिकॉर्ड, ठीक है, वेन एवर यू फेच डिलीटेड रिकॉर्ड, तो आपको ये क्लॉज देना पड़ता है, द नेम ऑफ द क्लॉज इज ऑल रोज। विदाउट दिस, विदाउट दिस अगर आप फायर करोगे तो आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना ऑल रोज के डिलीटेड रिकॉर्ड कभी भी नहीं आते। तो ये ऑल रोज क्लॉज जो है वो डिलीटेड रिकॉर्ड को लाने के लिए ही होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सारे रिकॉर्ड, सबसे पहले ये क्वेरी सारे रिकॉर्ड को टारगेट करेगी, सिलेक्ट आईडी नेम इज डिलीटेड फ्रॉम द हायरिंग मैनेजर, सबसे पहले ये क्वेरी सारे रिकॉर्ड्स को टारगेट करेगी। फिर उसके बाद आएगा वेयर इज डिलीटेड इक्वल्स टू ट्रू, फिर उसके बाद में क्या करेगी, सारे रिकॉर्ड में से केवल वही रिकॉर्ड निकालेगी जिसकी डिलीटेड, इज डिलीटेड की वैल्यू ट्रू है, और प्रिसाइसली उसके बाद में फिर एक कंडीशन और, जिसका नेम जो स्टार्टिंग कैरेक्टर आपने एंटर किया उसके साथ मैच होता है, और ये सारे उसके बाद फाइनली ऑल रोज, ऑल रोज मतलब हमें उन सारे रिकॉर्ड में से प्रिसाइसली वही रिकॉर्ड दो जो कि डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेरी बनाई है मैंने, ओके। तो नाउ इफ आई नीड टू चेक कि हमको ये जो हमारा कलेक्शन है उसमें रिकॉर्ड्स आए कि नहीं आए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ नॉट ऑफ दिस LSTHR रिकॉर्ड्स टू बी रिस्टोर डॉट इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी नहीं है, इफ इट इज नॉट एम्प्टी, EMPTY, इफ इट इज नॉट एम्प्टी, मतलब इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हमको मिले हैं, इसमें हमको कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं, तो जो रिकॉर्ड्स मिले उसको रीस्टोर कर देते हैं, यानी उसको अनडिलीट करते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों दे सकते हो, आप डायरेक्टली आप अनडिलीट जो है वो भी दे सकते हो, ठीक है, या फिर हम डेटाबेस डॉट अनडिलीट दे सकते हैं। तो अगर मैं डेटाबेस डॉट अनडिलीट यूज करता हूँ, ठीक है, देखिए आप, डेटाबेस डॉट, अगर मैं अनडिलीट, अगर ये मेथड यूज करता हूं मैं, डेटाबेस डॉट अनडिलीट, तो पहले इसके फ्लेवर्स देखो। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, ये वाला,
अनडिलीट में इतने सारे फ्लेवर्स है, लेकिन आपको जो सूट होता है वो देखो। अनडिलीट जिसमें सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट का नाम दूंगा, और दूसरा दूसरा पैरामीटर क्या रहेगा, बुलियन ट्रू और फॉल्स। हाँ, तो अरे कहाँ चला गया, सो डेटाबेस डॉट अनडिलीट। सो डेटाबेस डॉट अनडिलीट में इतने सारे इसके फ्लेवर्स हैं, तो पर्टिकुलरली हमको जो फ्लेवर सूट होता है वो देखना पड़ता है। तो हमारे लिए ये सही है। अनडिलीट में सबसे पहला पैरामीटर क्या रहेगा, कलेक्शन। कलेक्शन जो कि हमने बना रखा है, और दूसरा बुलियन ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू किसके लिए, अगर आपको ट्रांजिशन मेंटेन्स करने हैं, और फॉल्स अगर आप पार्शियल प्रोसेसिंग चाहते हो। अब इसका ना आप रिटर्न टाइप देखो, डेटाबेस डॉट, जैसे समझो इस चीज को, अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, अगर आप इंसर्ट करते हो, तो रिटर्न टाइप होता है डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट। इसके पहले आपने क्या किया, इसके पहले आपने डिलीट किया, तो वहां पर आता है डेटाबेस डॉट डिलीट रिजल्ट। अभी आप अनडिलीट कर रहे हो, व्हाट यू आर परफॉर्मिंग अनडिलीट, तो अनडिलीट के लिए जो मेथड है उसका नाम है अनडिलीट। जब हम अपडेट करेंगे तो उसका नाम आता है अपडेट रिजल्ट। तो ऐसे ना ये चार मेथड्स होती हैं। सेव रिजल्ट जो कि इंसर्ट के साथ काम करती है, उसके बाद आता है डिलीट रिजल्ट जो कि डिलीट के साथ काम करती है, अनडिलीट रिजल्ट जो कि अनडिलीट के साथ काम करती है, और अपडेट रिजल्ट, ये मेथड अपडेट ऑपरेशन के साथ काम करती है। सो आई विल बी सिलेक्टिंग दिस, मैं ये वाली मेथड को जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मेथड में सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, सबसे पहला पैरामीटर चाहिए कि हमें कौन सा कलेक्शन है जहां से उठाने हैं डेटा। तो पहला जो है वो कलेक्शन, ये मैंने दे दिया यहाँ पे, दिस आई एम कॉपिंग एंड आई एम पेस्टिंग इट ओवर हियर, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर जो है वो मैं फॉल्स रख रहा हूं, ताकि हमें प्रोसेस पार्शियल प्रोसेसिंग मिल सके। अब इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है डेटाबेस डॉट अनडिलीट में। सो डेटा बेस डॉट अनडिलीट, अनडिलीट रिजल्ट, ठीक है ये। लेकिन इसका कलेक्शन, तो आप इसका अरे या इसका कलेक्शन दोनों बना सकते हो। सो मैं यहाँ पे इसका कलेक्शन डिफाइन करता हूँ। आई विल बी मेकिंग दिस लिस्ट ऑफ डेटाबेस डॉट undelete result, and here you could give any name, for example result, usually result ही दे रहा हूँ तो result ही रखता हूँ, result equals to this। now this becomes the complete parameter, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, जितने भी जो भी आप स्टार्टिंग कैरेक्टर एंटर करोगे उस नाम से क्वेरी फायर होगी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल लुक इट आउट कि भैया ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं जिनको हमको डिलीट करना है, ठीक है। और फिर वो जो है जो उनको रीस्टोर करना, उसके बाद में फिर वो सारे रीस्टोर होके यहाँ पर आएंगे, और फिर आप उसको अनडिलीट कर लोगे। क्या एरर है यहाँ पे, is deleted equals to true and name like no such column is deleted की स्पेलिंग गलत है, is deleted की स्पेलिंग गलत है, ये रहा is deleted, ठीक है। आप नो सच कॉलम लाइक इज, जब कभी भी ऐसा एरर आया तो समझ जाना कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक है, जब भी उसको फील्ड नहीं मिले तो समझ जाना ये स्पेलिंग मिस्टेक है। देखो अब ये एरर हट गया यहाँ से, ठीक है। चलो तो ये मेथड को मैं कॉल करता हूँ, द मेथड नेम इज रीस्टोर एच आर रिकॉर्ड्स, ठीक है, रीस्टोर एच आर रिकॉर्ड्स। हियर आई नीड टू एंटर सम वैल्यूज, तो किसको रीस्टोर करना है एक बार देख लेते हैं। डीएमएल जो है, डीएमएल को रीस्टोर कर लेते हैं। तो आई एम हैविंग लाइक डीएमएल, स्टार्टिंग कैरेक्टर्स दे रहा हूं मैं डीएमएल, तो डीएमएल के नाम से जितने भी डिलीट हुए हैं सारे के सारे रीस्टोर हो जाएंगे। तो एक बार हम चलते हैं, पहले ऑल रिकॉर्ड्स में चलते हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। तो अब काउंट इंक्रीज होने वाला, यू हैव 363 रिकॉर्ड्स, ठीक है। और डीएमएल में प्रिसाइसली कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं रीस्टोर करता हूँ रिकॉर्ड्स को, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं रीस्टोर करता हूँ रिकॉर्ड को, एग्जीक्यूट, ठीक है। प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई है, हो गई है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो। तो आपके ये 200 जो रिकॉर्ड्स हैं वो रीस्टोर्ड हो गए, 200 रिकॉर्ड रीस्टोर्ड हो गए। अगर आप रिसाइकल बिन पे आप जाके देखते हो, ठीक है, तो आपको अब हायरिंग मैनेजर्स, अब देखो डी हट गया यहाँ से, दैट मीन्स डीएमएल वाले सारे रिस्टोर हो चुके हैं। अब यहाँ पे डीएमएल वाले रिकॉर्ड्स नहीं है, वो सारे यहाँ पर आ गए, ठीक है। और काउंट जो है, इवन काउंट भी आपका जो है वो इंक्रीज हो चुका होगा, काउंट भी आपका इंक्रीज हो चुका है। 300 से 563 हो गया ये, 300 से 563 हो चुका। तो ये है बेसिकली अनडिलीट स्टेटमेंट, ठीक है। चलो एक अब मैं अपडेट का आपको एज अ प्रैक्टिस देता हूँ। अनडिलीट हो गया,
रीस्टोरिंग वाला ये प्रोग्राम भी ले लिया है मैंने। अपडेट स्टेटमेंट आई एम गिविंग यू दिस इन द असाइनमेंट, प्रॉबेबली प्रोग्राम तो यहाँ पर ही बना हुआ है कि वी नीड टू राइट एन एक प्रोग्राम टू अपडेट द हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड। मतलब अब यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसा नहीं ले सकते, आपको मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वो ये देता हूँ कि नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव दीज रिकॉर्ड्स, हमारे पास में डीएमएल के नाम से वी हैव 200 रिकॉर्ड्स लाइक, तो डीएमएल एचआर रिकॉर्ड्स के नाम से 200 रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, अपेक्स के नाम से है क्या, नहीं है, ठीक है। सो हियर आई एम गिविंग यू वन असाइनमेंट टू अपडेट द हायरिंग मैनेजर्स हुज स्टार्टिंग नेम इज डीएमएल, जिनका भी स्टार्टिंग नेम जो है वो डीएमएल हो, ऐसे जितने भी रिकॉर्ड्स मिले, ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड्स ऐसे मिले आपको जिसका स्टार्टिंग नेम डीएमएल, तो ऐसे 200 रिकॉर्ड्स है। तो उनका जो लोकेशन है, बाय द वे सबका लोकेशन क्या है, यहाँ पे पुणे है, सबका लोकेशन, सारे 200 रिकॉर्ड्स का लोकेशन पुणे है। आई वांटेड यू टू अपडेट इट टू मुंबई, आप उसे मुंबई अपडेट करना है, और कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ पे सबके ऑल 8 ये आपको अपडेट करना है। सो दिस वन इज अ प्रोग्राम, ये आप अटेम्प्ट करो। तो यहाँ पे पूरा प्रोग्राम वगैरह सब लिखा हुआ है, बट स्टिल आई वांटेड यू टू अटेम्प्ट दिस, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है, ये अटेम्प्ट करिए। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, दैट मीन्स बाय टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग द असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, बैच प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। So let me first of all stop the recording.